Hello, good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Now, in today's class, we will discuss about AC analysis of transistors. AC analysis. Before this, we study about DC analysis. So, up to now, I never used the word amplifier. अभी तक हमने amplifier word use नहीं किया था. Now we start using word amplifier. So, what is amplifier? So, amplifier is a circuit which is used to increase the strength of signal. So the basic requirement, a transistor must work in amplifier if it is working only in a active region. So active region means कि emitter based junction is powered wise and collector based junction is a reverse wise. If transistor is having emitter based junction is powered wise and collector based junction is reverse wise, then we can say it is working in a active region. And then it is working as a amplifier. So now we can make three type of amplifier. We can make three type of amplifier by using all the three combination of these AP. So there are three type of amplifier: common base amplifier, common emitter amplifier, and common collector amplifier. As we know that the common emitter is having a maximum stability and it is having a high voltage gain as well as current gain. So we generally prefer common emitter amplifier as compared to common base and as compared to common collector configurations. So now we goes for amplifier circuit. So here it is amplifier circuit. So before this, what we say, you remove this capacitor. But now here is the role of capacitor. So this is a complete amplifier circuit. Amplifier means this is used to amplify AC signal. The work amplifier is used to raise to the strength of AC signal. तभी तक हमने इनपुट नहीं दिया था. So here is the input. AC signal is here. So we have to increase the strength of this signal, and we are taking output here across this load V0. We take output here across the load RL. Now, so this is complete common ammeter amplifier. So as we know that this is a DC supply. This is used to provide biasing. That is used to provide a transistor work in a active region. Here, सर आपका माइक म्यूट है सर. Yes sir. hello. Now it is here. Yes sir. Chalo, again I am repeating. But this is a common emitter configuration. Okay? So now we discuss about amplifiers. The amplifier is a circuit which is used to increase the range
strength of AC signal. So here is AC signal. So it is a weaker in strength. तो हमें इसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, दैट इज द रोल ऑफ एम्पलीफायर. तो अभी तक हम बात करें, ये हमारा इनपुट है, दिस इज इनपुट. ठीक है, और वी टेकिंग आउटपुट हियर. ठीक है, ये इनपुट है और यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट. अगेन इनपुट हमारा एसी है, लाइक दिस. तो आउटपुट भी एसी होगा, बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. मैंने तीनों कंपेरिजन भेजा हुआ है, तो आपको आप चेक कर लीजिएगा. इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट. कैसे आया वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, हाउ इट बिकम्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ठीक है, नाउ वी आर गिविंग इनपुट एट बेस. हियर इज बेस. वी आर गिविंग इनपुट एट बेस. Here is input. We are taking output at collector. ठीक है, तो कॉमन क्या हो गया, अमीटर. तो दिस इज अ कॉमन अमीटर एम्पलीफायर. अगेन हियर दिस इज अ डीसी बायस. वीसीसी जो हमने भी यूज किया था, ये हमने, इट इज यूज टू प्रोवाइड बायसिंग एंड इट इज यूज टू प्रोवाइड डीसी बायसिंग. इसलिए हमने कहा दिस इज द डीसी बायसिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बायसिंग? It is the role of this biasing कि transistor must work in a active region. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लीजिए ये हम नहीं लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वीसीसी हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमने R1 R2 भी यूज नहीं कर रहे हैं, दिस आर बाइसिंग. फॉर एग्जाम्पल हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमने सीधे इनपुट दे दिया बेस पे. तो व्हाट हैपन, बेस हमारा ऐसा है, बेस इज लाइक दिस. अगर हमने सीधे इनपुट बेस पे दे दिया, तो मे बी पॉसिबल कि हमारा जो बेस जो इनपुट है वो 2 मिली वोल्ट प्लस एंड 2 मिली वोल्ट माइनस है. ये हमारा इनपुट है. फॉर एग्जाम्पल एसी सिग्नल है, वीकर इन स्ट्रेंथ है. तो अगर हमने R1 R2 नहीं लगाया, दिस सप्लाई नहीं यूज किया, हमने सीधे इनपुट जो हमारा सिग्नल एसी सिग्नल है, हमने सीधे इसको दे दिया ट्रांजिस्टर को, बेस को. तो व्हाट विल हैपन कि व्हेन इनपुट इज अ पॉजिटिव, तो बेस एमिटर जंक्शन क्या हो गया, पावर्ड वाइज, it is working as an amplifier. But when input is a negative, so then base emitter junction become a reverse bias. तो पहले ये तो एक्टिव रीजन में था, अब पहुंच गया वो कलेक्टर रीजन. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ऐसे एम्पलीफायर काम वो नहीं कर सकता. तो पहले एक्टिव में पहुंच गया, अब कट ऑफ रीजन पहुंच गया. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने डीसिंग वाइसिंग दिया इसलिए कि ट्रांजिस्टर मस्ट वर्क इन अ एक्टिव रीजन. ठीक है, व्हाट हैपेंड, इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने कैपेसिटर को ओपन किया था और यहाँ पे करंट निकाली थी आईबी, कैपिटल आईबी यूज किया. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कैपिटल आईबी निकाला था, वो लगभग मान लीजिए 6 माइक्रो एम्पियर आया गया था फॉर एग्जाम्पल में. ठीक है, तो ये कैपिटल आईबी ये ऐसा था कि ये हमारा आईबी है. ये आईबी कब था, जब इनपुट 0 था. दिस इज आईबी फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, हियर वी फाइंड द आईसी की वैल्यू हमने निकाल ली थी. आईसी फॉर एग्जाम्पल दिस इज आईसी. आईसी कैसे निकाला था, हाउ वी कैलकुलेट आईसी, आईसी इक्वल टू बीटा आईबी. ठीक है, तो आईसी की वैल्यू आ गई थी 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, इस तरह की जो भी वैल्यूज आ गई होगी. ठीक है, देन वी कैलकुलेट वीसीई और फिर हम निकाल सकते थे वीसी. हियर इज वीसी. तो वीसी क्या होता है, वीसी इज अ, क्वेश्चन हमने किया था, व्हाट इज वीसी इज अ वीसीसी माइनस आईसीआरसी. ये होता है भाई. ठीक है, तो बेटा यहां देखिए, दिस इज द डीसी एनालिसिस. ये हमारा जो डीसी एनालिसिस हमने किया था. नाउ वी आर इंक्लूडिंग द एसी एनालिसिस. अब हमने यहाँ पे एसी इनपुट दे दिया, ये हियर इज एसी इनपुट. ठीक है, अब ये जो एसी इनपुट है, एसी इनपुट हमेशा हम स्मॉल लेटर में यूज करते हैं, आईबी, कभी कैपिटल यूज नहीं करेंगे. स्मॉल लेटर मींस एसी एनालिसिस. अब ये एसी इधर आया, and because of this transistor, this back supply, we are getting this DC. तो बेस पे AC प्लस AC दोनों ऐड होंगे.
तो बेस का इनपुट कैसा होगा, AC plus DC, because we know that कि AC value is very weaker as compared to DC, तो AC plus DC हो गया, तो बेस को जो इनपुट मिलेगा वो ये मिलेगा. Now this value is always positive. अब ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ट्रांजिस्टर मस्ट वर्क इन ओनली इन एक्टिव. ठीक है, तो ये काम हो गया AC plus DC का. सेकेंड चीज, अब कलेक्टर करंट कैसा होगा, कलेक्टर करंट भी बिकॉज AC plus DC दोनों है, तो कलेक्टर करंट की पहले एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, DC वैल्यू आ रही थी, अब वो AC plus DC सॉरी दोनों हो जाएंगी. नाउ इट इज अगेन AC plus DC. ठीक है, नाउ इट इज अगेन AC plus DC. ठीक है, and what is happens to VC, VC जो इसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, here is VC. ठीक है, तो VC की जो पहले वैल्यू थी, DC वैल्यू थी, आपने निकाला होगा 3, 4, 5, 6 कुछ ऐसा वोल्टेज होगा ये. दिस इज VC. नाउ दिस वैल्यू इज अ DC वैल्यू. अब हम इस पे AC में मिक्स कर रहे हैं, ध्यान रखिए. फर्स्ट ये हमारी सिंपल एक लाइन थी, DC वैल्यू थी, सिंपल एक लाइन थी, DC वैल्यू थी. वी आर एडिंग AC, तो AC plus DC, here is AC plus DC. So what happened to VC when there is only DC वैल्यू थी, जब हमने AC मिक्स किया तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा. Why it is come to reverse? बताओ भाई आयुष. ये देखिए इनपुट ऐसा है, I6 से ये है, अब V6 से उल्टा आ गई. Why it comes? सर क्योंकि बोलो बेटा. हाँ सर इसमें नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर लगा हुआ नहीं 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 बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि व्हेन इनपुट इंक्रीज, ये इनपुट इंक्रीज हो रहा है हाफ साइकिल में, IC इंक्रीज हो रहा है हाफ साइकिल में. जब IC इंक्रीज यहाँ पे होगा तो VC क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, व्हाट इज VC? VCC माइनस ICRC. तो व्हेन IC इंक्रीज VC विल डिक्रीज, तो यहाँ पे जो फेज शिफ्टेड हो जाएगा. ठीक है, तो VC इज अ फेज शिफ्टेड इज. ध्यान रखिए फिर से, इट इज AC, प्योर AC है. यहाँ पे जब बेस पहुंच गया AC plus DC, कलेक्टर पे AC plus DC, एंड एट दिस at this value AC plus DC, VC AC plus DC, but phase is 180 degree phase shifted. ठीक है, तो अब but what is input? Input is this DC constant. हाँ ठीक, इनपुट हमारा ये, तो आउटपुट भी कैसा आना चाहिए, आउटपुट भी इट इज इनपुट इज सेंटर अराउंड 0, इनपुट 0 ग्राउंड स्टैंडर्ड है, बट आउटपुट इज समथिंग. VC जो हम यहाँ से बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, VC इज अगेन शिफ्टेड, कुछ वैल्यू शिफ्टेड वैल्यूज है यहाँ पे, 0 पे नहीं है. तो हमें क्या करना है, उस जो शिफ्टेड वैल्यूज को फिर से हमें लाना है 0 पे. तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कैपेसिटर लगा दिया. कैपेसिटर क्या करेगा, AC को पास होने देगा, DC को वो क्या कर देगा, वो ब्लॉक. तो जो भी शिफ्टेड वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. तो हमें कैपेसिटर के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, दिस इज आवर डिजायर्ड AC आउटपुट. ठीक है, now again I am repeating this is the complete amplifier circuit. Amplifier circuit means it is used to increase the range strength of the AC signal. ये हमारा AC signal है, this is a weaker signal, it is center around 0. ठीक है, and this is a DC supply और R1 R2 they are providing a voltage divider bias. इनका काम है सिग्नल की स्ट्रेंथ को स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देना, ये पॉइंट मस्ट बी स्टेबल. तो यहाँ पे जो बेस पे पहुंच गए, तो बेस पे यहाँ से AC आ रहा है, यहाँ से DC आ रहा है, तो ये दोनों AC प्लस DC हमें यहाँ पे मिक्स होगा. ठीक है, अगेन ट्रांजिस्टर के अंदर गया, देयर आर सम ऑपरेशंस, फिर हमें IC निकल गया, IC में भी AC प्लस DC. देन एट VC दैट इज कलेक्टर वोल्टेज, so what we are getting VC is here, again it is AC plus DC, बट हमें आउटपुट सिर्फ और सिर्फ DC चाहिए, तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया. अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, AC को तो पास होने देगा और DC को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, तो द रोल ऑफ दिस कैपेसिटर इज अलाउड टू पास DC करंट एट द आउटपुट.
इसीलिए इसका नाम है कपलिंग कैपेसिटर, इज यूज टू कपल द एसी आउटपुट ओनली, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को आउटपुट करेगा, ये इसका काम हो गया कपलिंग कैपेसिटर का। ठीक है, आउटपुट इज 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, आउटपुट हमारे एक सेम फेज में नहीं मिल रहा, 180 डिग्री फेज शिफ्टेड हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? अगर एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, तो बेटा एम्पलीफायर में आप ये जो फिगर्स मैंने बनाई है, इस नोट्स में नहीं है, ये फिगर आप जरूर बना देना। इनपुट इज हियर एसी, हियर इज एसी प्लस डीसी, हियर इज एसी प्लस डीसी, वीसी एसी प्लस डीसी, एंड आउटपुट इज ओनली एसी। वी हैव टू मेक दिस सर्किट फिगर एट द आउटपुट। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, R1 R2 आपको क्लियर है? R1 एंड R2 आर प्रोवाइडिंग our voltage divider by C. R1, R2, RC and RE all are providing a DC by C. ठीक है, RS is a source resistor, जो हमारा इनपुट है उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, वो सोर्स रेजिस्टेंस है, आप इसको लगाइए ना लगाइए डजंट मैटर, आप जरूरी नहीं आप RS को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज सोर्स रेजिस्टेंस। नाउ हियर इज अगेन अ कैपेसिटर C1। अब इस कैपेसिटर के क्या काम है? इस कैपेसिटर का काम ये है कि जो भी हमारा इनपुट AC है वो सबका सब इधर चला जाए बेस पे। बट अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जो डीसी करंट, ऑफकोर्स मैंने पहले बता चुका हूं, डीसी इज अ पावरफुल करंट, तो डीसी करंट जो होगी अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ठीक है, और ये स्मॉलर वैल्यू है तो ज्यादा इधर पहुंच जाएगी। तो डीसी क्या होगी? डीसी वैल्यू इनपुट एसी को अफेक्ट कर देगी, वो चला जाएगा इनपुट, तो हमारे जो एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? वो वीक। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्या करेगा? किसी भी डीसी, जो हमारे डीसीसी से आज डीसी वैल्यू आ रही है, वो डीसी वैल्यू को कभी भी इधर नहीं जाने देगा, वो डीसी वैल्यू को सिर्फ इधर जाने देगा ट्रांजिस्टर में। तो इट इज अगेन अ कपलिंग कैपेसिटर, इज यूज्ड टू कपल एसी सिग्नल इनटू ट्रांजिस्टर। ठीक है, so now it is clear the role of C1 and C2. C1 C2 are coupling capacitor. It is used to allow AC signal couple from input to transistor and AC couple from output of transistor to the load resistor. So this is the role of C1 C2. ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। Now एक कैपेसिटर यहाँ पे और है, this is a CE. This capacitor is known as bypass capacitor. So now second thing, what is the role of bypass capacitor? एग्जाम में आता है कि bypass capacitor का काम क्या है, इसका नाम हमने दिया है मीटर bypass capacitor। ठीक है, तो बेटा जब ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर हम अमीटर करंट की बात करेंगे तो जब हम एसी इनपुट नहीं दे रहे थे तो अमीटर करंट ऐसे आ रही थी, लाइक दिस। when we are not giving input, AC current is like this. But when we are giving input, so current change हो जाएगी because AC plus DC दोनों आ जाएंगे। ठीक है, when we are giving input मतलब AC, without input that is only one constant value, but input दे रहे हैं AC plus DC, कलेक्टर करंट भी AC plus DC दोनों हो जाएंगे। अगेन अगर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, C is not there, so what happen at ammeter resistance we are getting AC as well as DC value। एमीटर रेजिस्टेंस पे हमें AC भी मिलेगा और DC भी मिलेगा। ठीक है, और वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, अमीटर रेजिस्टेंस इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस, इट इज प्रोवाइडिंग ए नेगेटिव फीडबैक। ये आउटपुट में लगा हुआ है बट यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो इनपुट पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एमीटर पे AC भी मिल रहा है और DC भी मिल रहा है और इनपुट हमारा AC है। तो हमें इनपुट में हम चाहते हैं कि जो AC इनपुट जो उसको हमें एम्पलीफाई करना है सिर्फ वही एम्पलीफाई हो। तो अगर हम ये लगा देंगे तो AC जो इनपुट है, जो यहाँ पे अमीटर के पास जो AC मिल रहा है वो हमारे इस इनपुट को अफेक्ट कर देगा। ठीक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मेरी आवाज खुद पहुंच रही है वहां पे, तो मेरी आवाज फिर अगेन एम्पलीफाई होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका सोल्यूशन ये निकाल दिया कि जो यहाँ AC प्लस DC था दोनों एंड दिस इज फीडबैक रजिस्टर, तो हमने क्या कर दिया, एक बाईपास कैपेसिटर लगा दिया। बाईपास कैपेसिटर क्या करेगा, AC जो भी वैल्यूज हैं उन सिग्नल्स की AC वैल्यू को बाईपास कैपेसिटर क्या करेगा, AC वैल्यूज को वो कर देगा ग्राउंडेड। ठीक है, जो AC वैल्यूज हैं उनको बाईपास कर देगा, वो सारी वैल्यूज हो जाएंगे ग्राउंडेड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, DC, और DC सिग्नल को वो फिर से वो यूज टू प्रोवाइड अ नेगेटिव फीडबैक।
ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ कॉमन एमीटर सॉरी बाईपास कैपेसिटर। ठीक है बेटा, ये आज मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, मुझे ये टॉपिक खत्म करनी है। अगर क्लास टाइम खत्म हो जाएगा तो भी प्लीज वेयर, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, सर्किट अनस्टेबल, फिर आपको आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू दिस क्लास। तो दैट इज द रोल सर ऑफ एक बार फिर बाईपास। से बेटा ये प्लीज बता रहा हूँ कि एट हियर एमीटर रजिस्टर, यहाँ पे भी AC प्लस DC दोनों होगा। ठीक है, इट इज अ फीडबैक रजिस्टर, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो इनपुट पे दिखेगा हमें। ठीक है, इनपुट हमें क्या चाहते हैं, हम भी वाना कि AC सिग्नल मस्ट बी एम्पलीफाइड। तो अगर इनपुट आउटपुट का भी AC इनपुट के AC में पहुंच जाएगा तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, वो सिमिलर वैल्यू होगी, जैसे मेरी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो भी RE के क्रॉस जो भी AC वैल्यूज हैं उनको बाईपास कर देगा ग्राउंड में, और RE पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, DC। तो दिस DC वैल्यू इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी। तो हमारे सर्किट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और AC वैल्यू कोई ना कोई हमारे इनपुट पे नहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द रोल ऑफ बाईपास कैपेसिटर, इज यूज्ड टू बाईपास AC कंपोनेंट्स टू द ग्राउंड। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट। एग्जाम में आपका एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर्स, तो आपको पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन करना है। और ये चीज बताई है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट आप वेवफॉर्म जरूर बना दिए, जैसे मैंने बनाया वेवफॉर्म। तो ऑल C1 C2 बाईपास कैपेसिटर्स की आपके पास नोट्स हैं, ये आप सारी चीज लिख लीजिएगा। इनपुट ऐसा है और आउटपुट उसका 180 डिग्री फेज है। सेम ऐसे ही कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर एक बार C1 का, यस सर C1 का जो इनपुट कपलिंग बेटा, कैपेसिटर का जो था बेटा ये मैंने कहा कि ये DC वैल्यूज है। सर। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, ये सिग्नल यहाँ से आ रही है DC वैल्यू। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये DC वैल्यू इधर भी चली जाएगी। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई DC वैल्यू इस ट्रांजिस्टर को अफेक्ट करे, इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, AC को अफेक्ट करे, क्योंकि DC स्ट्रॉन्ग है, AC वीक सिग्नल है। ठीक है, तो हमने एक कैपेसिटर लगा दिया कि AC इधर आ सकता है बट DC उधर नहीं आ सकता। ठीक है, सेम यही काम हमारा C2 का। चलो भाई, दिस इज तो ये सब नोट्स में लिखे हुए हैं। नाउ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है। आप सिंपल सर्किट देख लीजिए, आउटपुट हम कहाँ ले रहे हैं, एट अक्रॉस एमीटर, और इनपुट कहाँ दे रहे हैं, बेस। नोट सबके पास है। यहाँ पे ऑप्शनल है, RC आप लगा भी सकते हो, RC यहाँ नहीं भी लगा सकते, तो दे बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, एग्जाम में मान लो, हालांकि आता नहीं है बट मान लो आ जाती तो आप सर्किट आप बना लीजिएगा, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है निकला है। ठीक है, DC एनालिसिस, BJT एम्पलीफायर सर्किट, तो अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे हैं BJT एम्पलीफायर सर्किट। तो BJT एम्पलीफायर, DC एनालिसिस, AC एनालिसिस। तो अभी जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, सारे कैपेसिटर को हटा दिया था, वो हमारी DC एनालिसिस थी। नाउ वी गो फॉर AC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस में हमने क्या कर दिया था, सारे AC सोर्स को हमने जीरो कर दिया था और कैपेसिटर को ओपन कर दिया था। ये हमने सारे अभी तक क्वेश्चन हमने यही किया हुआ है। तो अभी तक जो हमने किया है वो DC एनालिसिस था, बेस वायस, फिक्स वायस, एमिटर वायस, ऑल द DC एनालिसिस, हमें कुछ नहीं करना है। नाउ वी गो फॉर AC एनालिसिस। AC एनालिसिस का रूल ये है कि अब हम उल्टा काम करेंगे, अब हम DC सोर्स को जीरो कर देंगे और कैपेसिटर को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट। तो अभी रिमेंबर, नाउ देयर इज 3 पॉइंट्स इज हियर, कि हमें क्या करना है, डायग्राम करना है, बनाना है, हाउ टू परफॉर्म AC एनालिसिस। देन वी रिप्लेस कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर बाय शॉर्ट सर्किट। जितने भी कैपेसिटर को हम शॉर्ट करना, ओपन नहीं करना है, DC ओपन, AC में शॉर्ट करना है। सेकेंड, रिप्लेस DC सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। जो भी DC सोर्स उनको हम शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो कर देना, ग्राउंडेड कर देना। ठीक है, रिप्लेस ट्रांजिस्टर बाय इट्स मॉड, ट्रांजिस्टर को हमें उसके मॉडल से रिप्लेस करना है। तो दिस इज AC एनालिसिस। नाउ वी गो फॉर AC एनालिसिस। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको बताना है बस ये कि आप याद रखिए कि हमें क्या करना है, DC सोर्स को शॉर्ट करना है, कैपेसिटर को शॉर्ट करनी है और ट्रांजिस्टर को उसके मॉडल से रिप्लेस कर देना है। Yes, please. Now it is a, ये कौन सा एम्पलीफायर है, इट इज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेक दिस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर AC मॉडल। इसका हमें AC एनालिसिस करना है, AC मॉडल करना है। अगर हमें DC मॉडल करना होगा तो हम क्या करेंगे, DC मॉडल में हमने इस कैपेसिटर को हटा दिया था, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया।
ओपन हो गए, हटा मतलब ओपन कर दिया डीसी मॉडल्स में। और तो जब ये ओपन हट गया और इसको सॉर्ट कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं रह गया कि दिस इज अ डीसी मॉडल। नाउ वी गो फॉर एसी एनालिसिस। तो एसी एनालिसिस मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि जितने कैपेसिटर है उनको हमें सॉर्ट करना है। ये हमारा हो गया सॉर्ट, ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट, ये भी हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक, सारे कैपेसिटर हो गए शॉर्ट सर्किट। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था कि इस जो हमारा डीसी, ये डीसी जितने भी सोर्स हैं उनको भी क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब वो कनेक्ट हो गए ग्राउंड से, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट ये था कि हमें जो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को हम मॉडल से रिप्लेस करेंगे। तो देर आर सो मेनी मॉडल्स, आपके कोर्स में आरई मॉडल है, टी मॉडल होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है, एच मॉडल, देर आर सो मेनी मॉडल। तो आपके सिलेबस में छोटा सा ही पोर्शन है, इंट्रोडक्शन पोर्शन ओनली है, तो वी ओनली आरई मॉडल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर के इसके इक्विवेलेंट मॉडल में रिप्लेस कर देना, दैट इज आवर वर्क, ठीक है। अब बेटा यही चीज हमने याद किया, देखिए सारे कैप्चर को मैं सॉर्ट कर दिए, कैप्चर सारे सॉर्ट हो गए, यहाँ एक कैप्चर था सॉर्ट कर दिया, यहाँ कैप्चर सॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी एक कैप्चर था, ध्यान रखिए दोनों में क्यों, देखिए अगर C3 अगर जो बाईपास कैप्चर सॉर्ट होगा तो कोई करंट RE में नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट इधर चली जाएंगी इस शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वी आर डूइंग फॉर एसी एनालिसिस, एसी के लिए शॉर्ट होता है तो पूरा का पूरा करंट इधर चली जाएगी, इसलिए फिगर में ये शॉर्ट हो गया है, RE हमने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। नाउ ऊपर जीरो, ऊपर जीरो, और इस ट्रांजिस्टर को हमें इक्विवेलेंट मॉडल में रिप्लेस करना है। नाउ अब बेटा ये फिगर देखिए, जब हमने ये किया उसके बाद हमारे फ्रॉम दिस फिगर वी गो हियर, देखिए R1 ऊपर ग्राउंड है, तो ग्राउंड ऊपर ना जाकर हम नीचे ला दें, क्योंकि ग्राउंड हम सारे नीचे ला रहे हैं। RC ऊपर हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, उसको भी हम नीचे ला सकते हैं, ग्राउंड को हम सब नीचे ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिगर में RS ये इनपुट हो गया, R1 पैरेलल R2 हो गया, R1 ग्राउंड से कनेक्ट है, R2 ग्राउंड से कनेक्ट है, तो R1 पैरेलल R2, देन RC इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो RC को भी हमने नीचे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ऊपर न लटका के नीचे लटका दिया। अब ये जो ट्रांजिस्टर बचा, अब इसका हमें मॉडल लेना, ठीक है। तो सिंपलीफाइड सर्किट हो गई, ये सर्किट हो गया ये, देन वी हैव टू टेक मॉडल ऑफ दिस एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास नोट्स हैं इसमें हमने 3 फिगर ऐड किए हैं और कुछ चीजें हटा देनी है, तो नोट्स में आपको ये सारी चीजें जो दी हैं आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करके भेज दूंगा। ये तो ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, तो मैं अगेन हटा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, यस प्लीज। यस, नाउ हियर इज अ ट्रांजिस्टर मॉडल। अब हमें ये देखना है ट्रांजिस्टर मॉडल्स लेने हैं, तो आपने मैं बताया ट्रांजिस्टर देयर आर सो मेनी मॉडल्स, तो आपके कोर्स में सिर्फ ये वाला मॉडल्स हैं, ये आप बता दीजिएगा, बी वाला सेक्शन वाला, ठीक है। दिस इज अ टी मॉडल, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ ये मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। इस मॉडल में क्या है, हियर इज स्मॉल लिटिल बेस करंट है, दिस इज अ बेस टर्मिनल, दिस इज कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज अमीटर टर्मिनल, ठीक है। तो वी रिप्लेस ट्रांजिस्टर बाय दिस मॉडल। So here is IB is base current, small letter मतलब for AC analysis, and this is a beta RE prime. This resistance is beta RE prime. So what is RE prime? So RE prime is a small letter लिया है, तो small resistance मतलब ये AC resistance है। तो this value is the, आप याद कर लीजिएगा, 26 millivolt divided by I.